Hello students, let's start. It's class 4, subject EVS, chapter 2. In last few classes, we already treat the few topics of this chapter. Now we will continue with the next topic. Care of hands and feet. आज हम बात करेंगे कि आप अपने हाथ और अपने पैरों का कैसे ध्यान रखें. All of you take out your book and open page number 15. Page number 15. Hands. Our hands and feet are the most important sources through which germs can enter our body. Hands and feet. These are the main sources by which the germs can enter our body. इन हैंड्स और फीट की मदद से जर्म्स काफी आसानी से हमारी बॉडी में एंट्री कर लेते हैं. इसका रीजन ये है कि वी डज द एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स. अपने हैंड्स से हम चीजों को जगह जगह छूते रहते हैं. Our hands comes in the contact of different type of surfaces. Due to this, germs can easily sit on our hands, and that gets in the contact of our food, through which it take entry in our body. Same as legs, with the help of leg. Good afternoon, beta. Legs that carry the germs. Good afternoon, sir. Good afternoon. To take entry in our house. पैरों की मदद से जर्म्स आसानी से हमारे घर के अंदर चले आते हैं, and with the contact of the surfaces, it takes entry in our body. We must therefore keep them clean to avoid spreading germs. Eating with dirty hands make us sick. We must wash our hands with soap and clean water before and after meal. अब जैसा कि हम जानते हैं कि our hands and legs both are doing the main act to take the germs inside our body, so we must clean it. हमें अपने hands और feet को clean रखना है, और clean रखने के लिए we should always use the soap and clean water. soap और clean water से अपने hands और feet को clean रखना है. और जानते हैं कि we should always wash our hands before and after the meal. खाने के पहले और खाने के बाद. हमेशा अपने हाथों को धुल लेना चाहिए. Same as whenever we use the toilet washroom, in that condition also we should wash our hands and legs properly. Since hands and legs that are the main do the act to take the germs inside our body, so we must always keep it clean. We must also wash our hands before and after such a cut or sore, even after playing with pets. कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी बॉडी पर कहीं पर कट या सोर होता है. कट या सोर का मतलब किसी तरीके की चोट लगना या जख्म हो जाना. ऐसी कंडीशन में भी अगर आपने उसे टच किया है तो we must wash our hands. नॉर्मली ज्यादातर घरों में लोग पेट्स वगैरह पालते हैं. अगर घर पर पेट्स हो तो ऐसी कंडीशन में इनके भी कांटेक्ट में आने के बाद we should wash our hands. हैंड्स हमारे हर जगह जाते हैं, हर सरफेस पे टच करते हैं. So it is very compulsory to wash the hands properly and regularly.
हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कभी हमारे हैंड्स कहीं भी इधर उधर सरफेस से टच किए, कांटेक्ट में आए, तो ऐसे में हैंड को वॉश करना बहुत जरूरी होता है। Hand must be washed both back and front and in between the fingers. We must keep our nails short. Dirt can gather under long nails. Germs grow in this dirt and spread to our food when we touch it with our hands. Hands को जब भी आप वॉश करते हैं तो हमेशा याद रखिए कि हैंड का फ्रंट साइड, बैक साइड और फिंगर्स के बिटवीन, फिंगर के बीच में, इन तीनों ही प्लेसेस पर अच्छे से वॉश करना चाहिए। नॉर्मली होता यह है कि किड्स जो होते हैं वे अपने हाथों को रब करते हैं और रब करके फिर उनका हैंड वॉश कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। हमेशा हैंड को फ्रंट से, बैक से और फिंगर्स के बीच में प्रॉपर्ली वॉश करना चाहिए। देन ओनली द जर्म्स कैन बी रिमूवल प्रॉपर्ली फ्रॉम द बॉडी। नेल्स, आप जानते हैं कि बॉडी में नेल्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं, सो वी मस्ट ऑलवेज कट अवर नेल्स वंस इन अ वीक। हमेशा वीकली, स्पेशली संडे को मेक इट रूटीन टू कट द नेल्स। हफ्ते में एक दिन नेल्स जरूर कट करना चाहिए, क्योंकि नेल्स और फिंगर के बीच में हल्का सा गैप होता है और उस गैप की वजह से वहां पर आसानी से गंदगी कलेक्ट हो जाती है। अगर आप अपना नेल्स चेक करें तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके नेल्स में आपको ब्लैक कलर का डर्ट दिखाई देगा, तो ये जरूरी होता है कि आप उसे क्लीन करें। सो हैंड वॉश, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट व्हिच मस्ट डू टू अवॉइड द जर्म्स स्प्रेड। Now we will talk about feet. अब हम बात करते हैं पैरों की। Washing and cleaning the feet every day, especially after playing outdoors or returning home from outside, is important. It helps in washing away sweat and dirt and prevents bacteria from growing. Feet, जितना हैंड वॉश कंपलसरी होता है उतना ही फीट का वॉश भी कंपलसरी है। जब भी कभी हम आउटडोर से घर आते हैं वापस, या जब भी कभी बाहर से खेल करके आते हैं, always we should wash our feet. अपने पैरों को हमेशा धुल लेना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आप हमेशा नोटिस करेंगे whenever you come back to your home that the sweat and dirt, मतलब पसीना और गंदगी, ये दोनों पैरों पर जरूर जमा रहता है। So always wash your legs. We should wear clean socks daily. We should cut our toenails regularly. We should always wear some footwear and avoid walking barefoot. It will help in preventing infections, insect bites, and injuries. Socks, ये सभी यूज करते हैं, तो इसका भी डेली वॉश करना जरूरी होता है। हमेशा क्लीन सॉक्स पहनने चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए कि बेयर फुट अवॉइड करिए, हमेशा स्लीपर्स वियर करिए, ये भी जरूरी होता है। तो पैरों की भी उतनी ही केयर होनी चाहिए जितनी कि नॉर्मली हैंड्स की करते हैं। अगर आप अपने लेग्स का ध्यान रखते हैं, यू विल वॉशिंग इट प्रॉपर्ली, so definitely you can prevent the infections
अगर आप प्रॉपरली लेग्स वॉश करते हैं तो इन्फेक्शन नहीं होगा। इंजरीज होने की कंडीशन कम हो जाएगी और इंसेक्ट्स बाइट्स भी अवॉइड होंगी। इसलिए कभी भी बेयरफुट नहीं रहना चाहिए, पैरों में हमेशा स्लीपर पहनना चाहिए। Now care of sense organs. अब हम बात करते हैं कि सेंस ऑर्गन्स की केयर कैसे की जानी चाहिए। सबसे पहले आईज। Our eyes help us in seeing things and also in expressing our feelings. We should take proper care of them. We should wash our eyes regularly with cold water. We should read in sufficient light and not hold the books too close to the eyes while reading. We should avoid reading in a moving vehicle or while lying down, since this will strain our eyes and make them ache. We should never rub our eyes with dirty hands or a dirty towel. We should watch TV from a distance. देखिए, आईज जो होती है वो हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में हेल्प करती है। सो आईज की केयर करना ये बहुत ही जरूरी होता है। आईज की केयर में सबसे पहली चीज आती है, इसको वॉश करना चाहिए कोल्ड वाटर से। कोल्ड वाटर का ये मतलब नहीं है कि आप एकदम चिल्ड वाटर से करिए, नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर वाटर से इसको वॉश करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप स्टडी कर रहे हैं तो सफिशिएंट लाइट होनी चाहिए। अगर उजाला बहुत कम है, रोशनी बहुत कम है, तो ऐसी कंडीशन में यू शुड नॉट रीड, दैट कैन मेक साइड इफेक्ट ऑन योर आईज। कभी भी बुक्स को टू क्लोज नहीं रखना चाहिए। पढ़ते समय हमेशा बुक को एक प्रॉपर डिस्टेंस पे रखिए। कभी भी लेट कर नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप लेट कर पढ़ते हैं तो ऐसे में यू कैन फील द स्ट्रेन और एक, आंखों में दर्द हो सकता है, आंखों में तनाव हो सकता है, तो यू शुड ऑलवेज अवॉइड इट। हमेशा आईज को क्लीन करने के लिए क्लीन टॉवेल का यूज करना चाहिए। कभी भी आईज को रब नहीं करना चाहिए, मतलब कभी भी आंखों को मसलना नहीं चाहिए। हमेशा टीवी एक प्रॉपर डिस्टेंस से देखना चाहिए। Now all of you come at the page number 16. अपनी बुक का पेज नंबर 16 खोल लीजिए। देखिए, अगर टीवी को आप प्रॉपर डिस्टेंस से देखते हैं तो इससे फायदा ये होता है कि टीवी से जो ब्राइट लाइट निकलती है, तेज रोशनी, जिसको ग्लेयर बोलते हैं, इस ग्लेयर से हमारी आईज प्रोटेक्ट रहती है। इसलिए टीवी हमेशा एक प्रॉपर डिस्टेंस से देखना चाहिए। We should eat food such as the carrots, green leafy vegetable, milk and fish, which are rich in vitamin A for healthy eyes. आइस के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी है, इसलिए हमेशा ऐसा फूड यूज कीजिए जिसमें विटामिन ए होता है। स्पेशली इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क
और कैरेट शामिल है। तो इन सब चीजों का अपने फूड में प्रॉपरली यूज करना चाहिए। Now ears and nose, we will talk about it. Ears and nose. Ears help us to hear various sounds and also check the balance of our body. We should use soft cotton buds to keep our ears clean and dry. We should never put any sharp or pointed object such as a pin or matchstick in our ears. We should prevent water from entering our ears and also protect our ears from loud noises. Ears. आपको पता है ears का काम होता है डिफरेंट टाइप के साउंड्स को अंडरस्टैंड करना, हमारे साउंड्स को समझना और उसे क्लियर करना। इसके अलावा ये बॉडी पे बैलेंस बनाने में भी हेल्प करता है। सो हमेशा ईयर्स को क्लीन करने के लिए कॉटन बड्स का ही यूज करना चाहिए। नॉर्मली ये लोगों की आदत होती है कि कान को अगर साफ करना है तो कोई भी चीज लेते हैं और कान में पिंच करते हैं। दैट इज द रॉन्ग थिंग, इट कैन डैमेज देयर ईयर्स। सो ऑलवेज क्लीन द ईयर्स विद कॉटन बड्स। कोई भी नुकीली चीज या कोई भी साफ चीज, पॉइंटेड चीज कान में नहीं डालनी चाहिए। और एक बात का और भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने कान को लाउड नॉइस, बहुत तेज आवाज से भी बचाना चाहिए। ये भी हमारे कान के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। नाउ नोज। We smell with our nose. It also helps us breathe in and breathe out air. We can take care of our nose by blowing our nose gently every day. We must not dig our nose as germs might infect the nose. नोज का हमारा जो मेन काम है वो ब्रीथ करना है। ये हवा को हमारे शरीर के अंदर खींचना और बाहर निकालना, ये काम होता है हमारी नोज का। सो वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ इट। कभी भी नाक में कोई चीज नहीं डालनी चाहिए, इससे हमारी नोज में प्रॉब्लम आ सकती है। वी मस्ट प्रॉपर्ली टेक केयर ऑफ इट। नाउ टंग। The tongue helps us to speak and taste food. Bacteria which grows in the mouth cover the tongue. After brushing, we should clean the tongue gently every morning with a tongue cleaner. Tongue. टंग हमारी दो काम में हेल्प करती है, एक फूड को टेस्ट करने में और दूसरे बोलने में। इन दोनों कामों में ये हमारी हेल्प करती है। हमारी टंग पर बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, बैक्टीरिया ग्रो करते हैं जो कि हमारे माउथ में जनरेट होते हैं आफ्टर फूडिंग, भोजन करने के बाद। इसकी वजह से हमारे टंग पर बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो इसलिए टंग को रोज क्लीन करना चाहिए। टंग क्लीनर से डेली टंग को क्लीन करना चाहिए। इट शुड बी इन द प्रैक्टिस। Now we will talk about the skin. Skin. The skin helps us to feel sensations like heat and cold
pain, pressure, etc. It also helps us to feel and identify objects. The skin is a major source of getting infections. The dirt on the skin may cause itching, prickly heat, and boils. We must have a bath with soap and water to keep our skin clean. We should use a clean towel to dry ourselves. We must always use our own towels and handkerchiefs to wipe our body. स्किन स्किन का काम होता है हमारी बॉडी को फील सेंसेशन देना, मतलब हमारी सराउंडिंग्स में क्या चीजें हैं, कोई भी चीज अगर हमारी बॉडी को टच करती है तो डायरेक्ट हमारी स्किन उसके बारे में इन्फॉर्म करती है। तो इससे हमें अलग अलग चीजों के बारे में पता चलता है, हीट, कोल्ड, प्रेशर एक्सेट्रा। ये सारी चीजें जो हमें स्किन के थ्रू ही पता चलती हैं। स्किन से एक चीज बहुत ज्यादा होती है, इन्फेक्शंस। अगर स्किन पर जरा सी भी लापरवाही की जाए तो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन तेजी से बढ़ सकता है। तो इसलिए स्किन की केयर करना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्किन पर प्रॉब्लम होती है, इसमें किसी तरीके की जलन महसूस होती है या कभी कभी छाले पड़ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में वी शुड मस्ट बी केयरफुल। हमेशा उससे क्लीन रखना चाहिए, हमेशा स्किन को क्लीन टॉवल से ही वाइप करना चाहिए और टॉवल हमेशा सेपरेट होनी चाहिए। कभी भी एक व्यक्ति की यूज हुई टॉवल किसी दूसरे को यूज नहीं करना चाहिए। So all these things we must be clear about our skin. स्किन की केयर में इन सारी बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। Keeping clean, take a bath. अब हम बात करते हैं बॉडी को क्लीन करना बाथिंग के थ्रू। Germs are very small living things. Millions of germs grow and live in our bodies. They are like invisible things ready to strike. Some germs can make us sick, but we have the power to fight them. The secret is cleanliness. We must take a bath daily with soap and water. Germs grow quickly in sweat. Hair should be washed regularly with a good shampoo. It should be brushed or combed daily to remove the dust sticking to it. Germs ये बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे कि वे कैन नॉट सी इट, हम इसे देख भी नहीं सकते। सो ऐसी कंडीशन में वी कैन डू ओनली वन थिंग, दैट इज टू कीप आवर बॉडी क्लीन। और बॉडी को क्लीन रखने के लिए बाथिंग दैट इज कंपल्सरी। बात हमेशा सोप से ये डेली होना चाहिए, सोप एंड क्लीन वाटर। हेयर में शैम्पू यूज करें, बालों में एवरीडे कॉम्ब करें। इन सारी बातों का ध्यान रखें जिससे कि हमारी बॉडी क्लीन रहे। जब हमारी बॉडी को सिक करते हैं, हमें बीमार कर देते हैं, इसलिए जर्म्स का खत्म होना बहुत जरूरी है और ये केवल एक ही मेथड से हो सकता है, वो है क्लीनलीनेस से। अगर हम साफ सफाई रखते हैं तो जर्म्स नहीं रहेंगे एंड वी कैन बी फिट एंड फाइन। Now all of you come as the page number 17. पेज नंबर 17 पर आ जाइए।
keeping fit, exercise daily. Keeping fit, exercise daily. Do you get enough exercise? क्या आप सही अमाउंट पे सही तरीके से एक्सरसाइज करते हैं? Try to make every day an active day. Choose the activities you like to do. Exercise makes your heart and lungs strong and boosts your energy levels. Whatever the day is yours, always try to make it active day. एक्टिव डे का मतलब ये कि आपको प्रॉपरली वर्क करना चाहिए. नॉर्मली ऐसा होता ही है कि हम लोग वर्किंग डेज में तो वर्क करते हैं, लेकिन हॉलीडेज में फुली रेस्ट पर आ जाते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. Our body must be active and it should be practiceful to do the work. ये बहुत जरूरी होता है. एक्सरसाइज करने से हमारा हार्ट और हमारे लंग्स ये दोनों स्ट्रांग होते हैं और ये हमारी बॉडी में एनर्जी को बूस्ट करने का काम करते हैं. आप लोगों ने देखा होगा और सुना होगा कि जब भी कोई स्पोर्ट्स पर्सन खेलने जाते हैं तो खेलने से पहले वार्म अप करते हैं. ये वार्म अप एक्चुअल में उनकी एक्सरसाइज होती है जिससे कि उनकी बॉडी में एनर्जी बूस्ट हो जाए. Running, dancing, riding a bicycle and swimming are good exercise. They build our strength and your muscles can work without getting tired. Climb up the stairs instead of taking the lift and you will get some exercise every day. Walking is a good exercise. Walking to nearby places also cuts down on air pollution caused by using a vehicle. Turn up the music, jump and dance to it. It does not matter how you dance as long as you move to the music. एक्सरसाइजेज डिफरेंट टाइप की होती है. जरूरी नहीं कि आप वही सारी एक्सरसाइज करिए जो प्रोफेशनल्स कहते हैं. जो नॉर्मल वर्क होता है वो भी एक्सरसाइज ही होता है, जैसे राइडिंग, स्विमिंग, डांसिंग, वॉकिंग, jumping, jogging, all these things are the exercise. ये सब एक्सरसाइज के ही पार्ट है. इन सब में हमारी बॉडी वार्म अप होती है. तो जब भी आपको मौका मिले, all of you do these things properly. It doesn't matter that who is watching you or what's happening. That's it. You must do the exercise. स्पेशली अगर घरों में स्टेयर्स हैं तो स्टेयर्स अप डाउन करना, दैट इज आल्सो एक्सरसाइज. और प्लेसेस वेयर द लिफ्ट इज अवेलेबल, अवॉइड इट एंड ऑलवेज यूज द स्टेयर्स टू गो बिकॉज़ इट हेल्प्स यू टू गिव यू द एक्सरसाइज. Now keeping healthy, fighting germs in the kitchen. Our health depends on not just what we eat, but also how we eat our food. It is important to eat healthy by keeping some rules in mind. हमारी हेल्थ ये जितना इस बात पे डिपेंड करती है कि हम क्या खाते हैं, what we eat, इतनी ही इस बात पर भी डिपेंड करती है कि how we eat. ये दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट होती हैं. फूड सेफ्टी रूल्स.
तो खाते समय भी फूड की सेफ्टी से रिलेटेड कुछ रूल्स बनाए गए हैं, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। You must be careful not to eat cut fruits or drink fruit juices with ice kept in unclean conditions or eat uncovered food from roadside vendors. Flies feed on these food items and make them unfit for drinking. ये बहुत ही कॉमन सी बात होती है। जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो नॉर्मली रोड के किनारे आपको वेंडर्स दिखते हैं, जो छोटी छोटी कॉर्नर पर शॉप्स लगी रहती है, ओपन शॉप्स होती हैं, वहां पर ज्यादातर आप लोग चले जाते हैं कुछ खाने के लिए, लोग जाते हैं। इट शुड बी अवॉइडेबल बिकॉज नॉर्मली द वेंडर्स द थिंग्स दैट हैव टेक द ईटेबल्स दैट आर ऑलवेज पुट इन ओपन एंड अनहेल्दी कंडीशन। वो हमेशा जो भी चीजें खाने पीने वाली रखते हैं वो हमेशा अनहेल्दी कंडीशन में होती है, वो ओपन होती है, खुली होती है। तो डेफिनेटली ओपन होने की वजह से उस पर फ्लाइज का सेट करना बहुत ही कॉमन है। और आप जानते हैं कि मक्खियां बहुत तेजी से जर्म्स को स्प्रेड करती हैं, तो इसलिए कभी भी ऐसी जगहों से कुछ भी खाना पीना अवॉइड करना चाहिए। Do not keep cooked food outside for too long. Germs grow well at room temperature and can spoil food. Refrigerate the leftovers immediately. Always cover food items kept for outside. Heat the food before eating. Never taste food which think is spoiled. If you are not sure, do not eat it. कभी भी कोई भी फूड है अगर, तो उसको भी ओपन साइड में नहीं रखना चाहिए। हमेशा वो कवर होना चाहिए। फूड यूज करने के बाद जो भी लेफ्ट ओवर बचे, जो भी भोजन बचे उसको हमेशा रेफ्रिजरेटर में रख देना चाहिए। कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि फूड खराब होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी स्पॉइल, तो उसको टच मत करिए। You should always avoid to taste it or keep it other. Water safety rules. Boiling water for 15 to 20 minutes kill the germs present in it. It is the easiest way to get safe drinking water. Water should always be covered to protect it from germs. When we keep ourselves clean and hygienic, we not only stay healthy, but it also makes us feel good. It also helps others stay healthy because if we are clean, we do not spread germs to others. कभी भी पानी अगर पीना हो तो 15 to 20 मिनट तक उसको बॉयल कर लीजिए। अगर हम 15 to 20 मिनट तक वाटर को बॉयल कर लेते हैं तो उसके जर्म्स मर जाते हैं। इट इज वेरी कॉमन थिंग। तो वाटर भी ऐसी कंडीशन में हमें क्लीन मिलेगा। तो हमेशा हमेशा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, बी हेल्दी, और अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आप दूसरों को भी हेल्दी करेंगे, क्योंकि इफ वी आर हेल्दी दैट द जर्म्स आर नॉट आवर बॉडी एंड इट विल नॉट spread. So with all this, this chapter is now finished. All of you, if have any question, you can ask it in the WhatsApp group. Whenever you attend the class, always take a copy and a pen, note down your questions and ask your questions in the WhatsApp group. So today's class is now over. Tomorrow we will meet again the same time for this class. Thank you all of you.